इसको आप लोग बिल्कुल ही याद कर लेंगे बच्चे, बिकॉज हु इज टॉकिंग, म्यूट योर माइक। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार का माइक ऑन है, और शालीन और जिया कुमारी, कैमरा ऑफ है अभिषेक का और माइक ऑन। अभिषेक का कैमरा ऑफ, माइक ऑन है। And two Gauri are in the class. One is joining, one already had joined. Gauri. तो जो गौरी हैं वो अपने कैमरा को तुरंत ऑन करेंगे, और नहीं तो फिर उनको हम वेटिंग रूम में दे देंगे। इसको याद रख लेंगे। नाउ व्यू द बोर्ड, बोर्ड व्यू करिए। बोर्ड दिख रहा है सारे लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is our topic of the day? Yes, ma'am. Yes, ma'am. MCQ. Yes, ma'am. MCQ. Lesson 4. MCQ. ओके, हो गया? देख लिया सभी ने? आप लोग पहले all of you open your CW copy. All of you open your CW copy and write lesson 4 topic MCQ. सारे लोग अपने कॉपी में इसी चीज को लिखेंगे, लेसन 4 टॉपिक MCQ। लेसन 4 टॉपिक MCQ, आपको यही लिखना है कॉपी में। प्लीज राइट इट इन योर कॉपी एंड राइट डेट ऑल्सो। लेसन 4 टॉपिक MCQ and write date also. लिख लिया सभी ने? Yes or no? Yes मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Now start करेंगे हम लोग। और जिनका भी हम बता दे रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, जिनका भी कैमरा ऑन नहीं रहेगा, अगर हमको लगेगा कि उनका सही नहीं है, he or she is not attending the classes as he she should do, तो उनको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे। उसके लिए कुछ भी हमको नहीं सुनना है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। आई वांट टू सी योर फेसेस। द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लास मस्ट विजिबल ऑन माई स्क्रीन। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स का एक एप्लीकेशन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। आई वांट टू कीप दैट रिकॉर्ड। उसके बाद कुछ भी नहीं, पेरेंट्स का कंसर्न चाहिए कि व्हाट स्टूडेंट इज डूइंग इन द क्लास, वेदर यू आर डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स और नॉट। अभी भी बहुत सारे बच्चे मेरे स्क्रीन पर हैं जो जिनका कैमरा ऑन नहीं है। एक अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, और दूसरा आर्या है, एक आर्या है वो, और तीसरा प्रिया, प्रिया कुमारी, और चौथे शिवेन। इतने लोगों का कैमरा ऑन नहीं है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। चलिए चलिए So कल भी फ्री फायर का बात करने लगा। पढ़ने के लिए नहीं है। सर हंस कौन बोल रहा है?
Now, first question is, energy generated from tides is called. Answer लिखिए. Energy generated from tides is called. क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, आंसर लिखिएगा. इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सप्लायर्स टू कंज्यूमर्स. विच क्वेश्चन, किसको कौन सा रिपीट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किसको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2. ओके. It is an interconnected network for delivering electricity from suppliers to the consumers. हो गया? सभी ने लिख लिया? Now ready for the next question. Third question number 3. Organic waste such as dead plants, animals, dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called. This is question number 3. Again repeat करते हैं. Organic waste such as dead plants, animals, dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called. Organic waste such as dead plants, animals, dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called. Question number 3. It is also called black gold. Question number 4. Sorry. Question number 4. Question number 4. It is also called black gold.
Now it is also called black gold. Are you listening me? सारे बच्चे हमको सुन रहे हैं? All of you are listening me? Yes or no बताइए. चैट करिए जल्दी से. Yes or no? Okay. Okay. ठीक है. Now it is also called black gold. This was question number 4. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार हो जाइएगा. These are expensive to install and hard to maintain. These are expensive to install and hard to maintain. These are expensive to install and hard to maintain. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. These do not cause air pollution and are largely eco-friendly. Question number 6. These do not cause air pollution and are largely eco-friendly. हो गया. These do not cause air pollution and are largely eco-friendly. Question number 7. A river that has continuous flow all the year round. Question number 7. Question number 7. A river that has continuous flow all the year round. Question number 7. A river that has continuous flow all the year round. This is question number 7. Now question number 8. Question number 8. A scarcity of conventional resources of energy is referred to as dash. Scarcity of conventional resources of energy scarcity of conventional resources of energy is referred to as scarcity of conventional resources of energy is referred to as this is question number 8. Question number 9. Question number 9 के लिए
Dash is mostly obtained along with mineral oil. Dash is question number 9 के लिए. Dash is mostly obtained along with mineral oil. Dash is mostly obtained along with mineral oil. बोलने के बाद भी इतने बच्चे जो हैं मेरे स्क्रीन पे ज्यादातर आते हैं. Participants in my class, they are not visible. Most of you are not visible. राम कृष्णा, रिया कुमारी, उसके बाद है पीयूष राज, शिवराज कुमार, तमन्ना कुमारी, सलोनी कुमारी, विजिबल नहीं. कैमरा तो सबको ऑन दिखा रहा है. 2-4 लोग हैं, सृजन, शिवेन कुमार, उसके बाद है रमन है, मधुमती, उसके बाद प्रियांशु कुमारी यादव, पीयूष राज, ये लोग जो हैं विदाउट इसमें, आदित्य प्रकाश, अभिनव कुमार, गौरी कुमारी, अभी तो ये लोग आ ही रहे हैं. they are just now. Dash is mostly obtained along with mineral oil. Now question number 10 के लिए तैयार हो जाइए. Rain water or river water is stored in dams is made to fall from heights. नेम लिखिए, इसको कौन सा कहते हैं. Rain water or river water is stored in dams is made to fall from heights. Now match your answer. Question 1. The energy generated from tides is called. Question 1 के लिए Question 1. Tidal energy. Question 1 के लिए करेंगे. आंसर 1 होगा टाइडल एनर्जी. देखिए तो विजिबल है, वो विजिबल है आप लोगों को. फर्स्ट होगा टाइडल एनर्जी. नंबर 2 इलेक्ट्रिकल ग्रिड. इलेक्ट्रिकल ग्रिड, दिस इज नंबर 2. नाउ नंबर 3 के लिए आ जाइए. नंबर 3 है आपका कोई हमको क्वेश्चन नंबर 3 बताएगा. सॉरी, हाँ आ गया. ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स
animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. Question number 4 now. Question number 4. It is also called black gold, petroleum. Question number 5. Question number 5. These are expensive to install and hard to maintain. Conventional sources of energy. Of energy. क्वेश्चन भी हमने आपके बुक से ही लिया है, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन को देख करके और उसका आंसर लिखिए. दिस डू नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन एंड आर लार्जली इको फ्रेंडली. दे आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. होगा नॉन कन्वेंशनल sources of energy. Sources of energy. Question number 7 का होगा आंसर. A river that has continuous flow all the year around. Perennial river. Question number 7. P-E-R-I P-R-E double N-I-A-N, perennial river. Now question number 8. Dash is mostly obtained along with mineral oil. And this was question number 9. 8 was scarcity of conventional resources of energy is referred to as energy crisis. एनर्जी क्राइसिस, CRISIS. ये दिया हुआ पेज नंबर 42 में देखिए. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लास्ट से देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन है. स्कार्सिटी ऑफ कन्वेंशनल so resources of energy is referred to as energy crisis. Question number 9. Dash is mostly obtained along with mineral oil, that is natural gas. Rainwater or river water stored in dam is made to fall from heights, tidal power. इसका देखिए ये पेज नंबर 39 का फर्स्ट हाइडल पावर का फर्स्ट लाइन. ठीक है. नेचुरल गैस जो है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, नेचुरल गैस का फर्स्ट लाइन है. नेचुरल गैस का फर्स्ट लाइन है, नेचुरल गैस इज मोस्टली ऑब्टेन्ड अलोंग विथ मिनरल ऑयल. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बता दिए, और क्वेश्चन नंबर लिया गया है आपका कीवर्ड से. आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम कीवर्ड्स. दैट वाज द कीवर्ड्स का नंबर देखिए, लास्ट थर्ड.
perennial river, a river that has continuous flow all the year around. Question number 1 is also from the book. ये देखिए यहाँ tidal energy का पेज नंबर 41, पेज नंबर का tidal energy generated from tides is called tidal energy. Question number 2, ये हमने लिया है आपके कीवर्ड से. कीवर्ड्स का नंबर 2, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट interconnected network for delivering electricity from suppliers to consumers. Question number 3, I have taken from page number 41. Biogas, first line. Organic waste such as dead plants, animals, dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. Question number 4 जो है ये हमने लिया है, I have taken it from Do You Know of page number 39. Dash is also called black gold, petroleum. 5 and 6 I have taken from page number 42, the column given as a comparative study of conventional and non-conventional resources का. Number 3 जो है conventional का, these are expensive to install and hard to maintain. And ये जो है number 4 है, these do not cause air pollution and are largely eco-friendly, non-conventional resources of energy. हो गया? Now ready for the next question. अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए. किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ अगर तो वो हमसे चैटिंग कर सकता है. और टुडे यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ लेसन 18 का पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, लेसन 3 का भी दे देंगे और इसका भी दे देंगे. और इन माय टुमारो क्लास आई विल डू वी विल आप लोग का होमवर्क, आई विल डू करेक्शन ऑफ योर हॉलीडे होमवर्क. बच्चे जो ज्वाइन करेंगे अपने हॉलीडे होमवर्क के साथ ज्वाइन करेंगे, आई विल राइट योर नेम. और बस उसके बाद फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है हॉलीडे होमवर्क में तो आप हमसे अभी डिस्कस कर सकते हैं. You may discuss. Otherwise, कल का क्लास नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन. गो ऑन पेज नंबर 44 में चले जाइए. गो ऑन. Which one of the following is not a characteristic of rocks? कोई इसका आंसर किए हुए हैं बताएंगे? आर्या ने किया हुआ है. यशवीराज ने भी दिया है डायरेक्ट मैसेज से. There are 4 options have been given. These are composed of mineral crystal. These have a different mineral composition. These vary in hardness and color. These form outermost shell of the earth. 5 students ने हाथ उठाया है. यशवीराज बताइए. यशवीराज. एक मेरे पास आया लेसन 18 कह रहे हैं कि पढ़ाया नहीं गया है, बट लेसन 18 पढ़ाया गया है आप लोगों को. राज्यसभा लोकसभा पढ़ाया गया है आप लोगों को बिफोर समर हॉलीडेज के पहले. समर हॉलीडेज के पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है. इसका वीडियो क्लिप भी अगर आप समर हॉलीडेज के पहले वाला देखिएगा 1 वीक का तो उसमें मिलेगा. यू विल गेट द वीडियो क्लिप. जिन्होंने भी चैटिंग में मुझे बोला है, किसी ने कहा है, देख लेते हैं, आपको बता भी देते हैं. नो नॉट इनसिक्योरिटी.
आदर्श रंजन ने कहा मैम यू डिड नॉट टीच लेसन 18, ये पढ़ाया गया है, ठीक है। आदर्श रंजन, आप छुट्टी के पहले के आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा, ठीक है। यशवी राज आपने लिखा है 9, दिस फॉर्म आउटर मोस्ट से टिक द करेक्ट ऑप्शन का 1, उसके बाद 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट, बताइए कौन सा है, विच वन। विच वन इज द बेस्ट क्वालिटी, बताइए। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सी, सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग पढ़े होंगे वो आंसर देंगे, जिनका नहीं हुआ होगा वो तो नहीं दे पाएंगे। The major oil fields of India are located in which one of the following state of India? बताइए, आसाम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। Answer is Assam. Answer is Assam. Not in Rajasthan. A, Assam. आप लोग हमको मैसेज करेंगे, मैसेज करेंगे। The metallic minerals used in electrical industry are copper and bauxite, iron and copper, mica and manganese, bauxite and iron. Answer is A, copper and bauxite. Yashvi Raj, not B, iron and copper नहीं, copper and bauxite. A होगा, ए होगा। अब देखिए कॉपर का, देखिए बॉक्साइट का जहां पे है उसी पे दिया हुआ है, दोनों ए से ये बनता है, देखिए आप। कॉपर इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल गुड्स और बॉक्साइट एल्यूमिनियम इज ऑफ बॉक्साइट ओर से मिलता है। इट इज यूज इलेक्ट्रिक वायर, एरोप्लेन, ये दोनों में दिया है, दोनों इलेक्ट्रिक गुड में, तो कॉपर एंड बॉक्साइट होगा इसका आंसर। पेज नंबर 35, रेफर पेज नंबर 35 फॉर दिस आंसर इन योर बुक। रेफर पेज नंबर 35 फॉर दिस आंसर, कॉपर एंड बॉक्साइट, यही आंसर होगा। नंबर 5, petroleum is not extracted from the oil fields of North Sea by Sweden. स्वीडन होगा उसमें, बिकॉज नीदरलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे आंसर में दिया हुआ है आपका, उसमें स्वीडन ही होगा। इसका डी होगा, 5 का डी होगा। अब फिर से एक बार आंसर को देख लीजिए आप लोग। मैम व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी है, दोज फॉर्म आउटर मोस्ट सेल ऑफ द अर्थ। नंबर 2 का आंसर सी है, नंबर 3 का ए है, नंबर 4 का भी ए है और 5 का डी है। अब फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आंसर आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। किसी का और कोई प्रॉब्लम है तो वो हमको चैट करके बता सकता है, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो हमको चैट करके बता सकता है, क्लास से रिलेटेड एनीवन हैज प्रॉब्लम वो हमको बता सकता है। तो कल का आप लोगों का है
कल का जो हम लोग का क्लास का है, टॉपिक ऑफ द टुमारो क्लास इज हॉलीडे होमवर्क। ओके, मैम क्वेश्चन आंसर इज बी। These are composed of mineral crystal. तो ये तो मिनरल क्रिस्टल से ही तो ये बनता है, डिफिनिट नहीं रहता है। ये आपको YouTube पे अवेलेबल है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर। अप्रैल के क्लास में देखिएगा, आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर, PDF इसका मिल जाएगा। ओके